judges, our cabinet members, our staff, and above all, not place welcome address. I will speak differently because the personality is as our chief guest is different. He is different and he is unique. Khalid Abdul Siddiqui Saab, we respect you, we love you. But not for the reason that you are a minister, and not for the reason that you are a parliamentarian, and not for the reason that you are a seasoned parliamentarian, and not for the reason that you are elected member of several times, and not for the reason that you are close to Prime Minister, not for the reason that you have great influence, you are a cure, for the reason that you are an honest man, for the reason that you are a courageous leader, for the reason that you are a bold leader, for the reason that you take tough decisions. And why do I say that? I have seen your struggle, your history, and to elaborate it further, I would like to say two couplets. रास्ता जो आपने मुंतखब किया वही एक रोशनी का रास्ता था, वही कामयाबी का रास्ता था, और ये फैसले एक जुर्रतमंद बावकार लीडर ही कर सकता है। That you are. The definition of a good leader is that a person who can steer in the most stormy weather, and you have steered in the most stormy weather. Your capability to keep the boat sailing in the most stormy weather is the quality that makes you a national leader. And today I went to them, they said, okay, we will perform 100 surgery free of cost and paid all the donations for these things. So when you start, you pay for a long journey in the future to cover the whole nation. So these are my some submissions to you, and I hope and I am sure with your blessings, with your cooperation, we will continue to march forward, and we will continue to create one milestone after the another milestone. Thank you all. For a moment I thought we are wrong, but we are back into the call and very happy to address this wonderful meeting. First of all, Honorable Minister of Education, it is extremely remarkable that you join this important milestone meeting, and we regard this very, very highly, because the support of the governmental bodies, particularly the Ministry of Education as well as Health, of course, are so important to make this project a success. बरकतों से यहाँ पे इस शहर में आके वो लोग बसे हैं जिनके वालिदैन के कदम जब इस खत्ते में पड़े हैं तो ये मुबारक कदम पड़े हैं, तो हिंदुस्तान से ये पाकिस्तान हमें जो पाकिस्तान आए हैं तो अपना पता साथ लेके आए थे, हमें आए हैं तो आज़ादी साथ लेके आए थे, और हमने जो वादा किया था पाकिस्तान बनाने का वो पूरा किया, और पाकिस्तान को चलाने का और पालने का वो वादा भी पूरा कर दिया। ख्वाहिश के हो रहे हैं वो जिसके खातिर हो रहे हैं वो खुदा देख रहा होगा, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कराची में कोई भी काम करने का मकसद है कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं पूरे भी बैठे, और जिन डॉक्टरों ने जो काम किया है सोच लें कि वही जिंदगी है, यही काम है, यही ताकत है, और यही अपने कहीं
बहुत बहुत शुक्रिया। आँखों का शोबा तो पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी में 1968 से तो कायम है, अस्पताल 1992 से। लेकिन ये जो इतना बड़ा अस्पताल था 200 बिस्तर का, उसमें जो आँखों का शोबा था, जैसे आप जानते हैं कि तकनीकी जो है डेवलपमेंट की वजह से डे केयर में तब्दील हो गया। तो जब इतना बड़ा अस्पताल था तो हमने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे कि आवाम की खिदमत की जा सके। तो फिर पहले यहाँ एक डेंटल डिपार्टमेंट खोला गया, उसके साथ मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट खोला। तो वहीं से मुंह के सरतान के शोबे का हमें ख्याल आया। तो अभी हमने मुंह के सरतान की मुफ्त यहाँ सर्जरीज शुरू की हैं। माशाल्लाह से 350 सर्जरीज कामयाबी से हो चुकी हुई हैं। जिस सर्जरी के लिए पब्लिक को 8 से 10 लाख रुपए फीस सर्जरी खर्च करनी पड़ती, वो यहाँ कम्प्लीटली मुफ्त होती हैं। और उसके अलावा अभी हमने इसी साल छाती के सरतान का भी यहाँ इलाज, कैंसर का सर्जरी शुरू कर दी है, वो भी मुफ्त है। मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड, तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद हैं। और इंशाल्लाह ताला ये सफ़र जारी रहेगा। लेकिन मेरी अपील ज़रूर होगी हुकूमत वक्त से, बिलखसूस सिंध की हुकूमत से, कि जो गुटखा का जो बैन है और जो मावा का बैन है, उस बैन को सिर्फ कागज़ की हद तक ना रखें और उसकी बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन भी की जाए। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है शुरू में हमारे पास पहले पेशेंट्स कम थे क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि इस आई हॉस्पिटल के अंदर अंदर हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर या ओरल कैंसर सर्जरीज भी हो रही हैं। वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है पहले महीने में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कम थे, लेकिन अब वक्त के साथ साथ हमारे पास हर ओपीडी के अंदर हम 8-10 से 15-20 पेशेंट्स देख रहे हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ़ सर्जरीज पहले हमारे पास कम थी और इसी 4 महीने के अंदर अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट एवरी वीक वी आर डूइंग सर्जरीज। ऑलमोस्ट हर मेरे यहाँ पे 2 दिन होते हैं, ट्यूसडे और थर्सडे मैं यहाँ पर आती हूँ, तो हमारे पास ऑलरेडी अलाइंड पेशेंट्स होते हैं सर्जरी के लिए, तो जिनको हमने पहले देखा हुआ होता है। डॉक्टर आमना मेरे साथ होती हैं जो उनको स्क्रीन करके रखती हैं मेरे लिए, और बाकी तमाम चीज़ें करवाने के बाद और जो कैंसर सर्जरी होती है वो हम ट्यूसडे और थर्सडे को जारी रखते हैं अपने। जी बिल्कुल, देखें, एक तो मेरी ओपीडी जो है वो रोज़ाना डेली बेसिस पर होती है 10 to 2 PM, लेकिन ख़वातीन के लिए हमने स्पेशली 2 दिन हफ्ते में मुकर्रर किए हुए हैं, ट्यूसडे और फ्राइडे, जिसमें हम उनकी फ्री चेकअप, फिजिशियन सर्जन दोनों, और फ्री ब्रेस्ट रिलेटेड स्क्रीनिंग, एग्जामिनेशन, फ्री मेडिसिन, फ्री मैमोग्राम, फ्री अल्ट्रासाउंड प्रोवाइड करते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी से सारी फीमेल जो है वो फ़ायदा उठा सकती हैं कि वो ट्यूसडे या फ्राइडे में से 9 to 2 अगेन किसी भी टाइम आएँ और अपना चेकअप कराएँ, अपनी स्क्रीनिंग कराएं, अपनी डायग्नोसिस अर्ली कराएं और ट्रीटमेंट